Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 7th September. I'm sure children you all are doing good, you are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols and stay healthy and stay safe children. As you all can see on the board that we are still continuing with chapter number 8, which is working with numbers till 100. Okay, so here I am before you with one more video from this chapter. In this chapter children we have done वेरियस एक्सरसाइजेस. हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस किया अलग अलग टॉपिक्स पे. हमने इसमें नंबर नेम्स पढ़ा, एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ा एंड बाय नाउ आई एम श्योर यू ऑल नो वेरी वेल, सबको भी पता चल गया होगा कि एक्सपैंडेड फॉर्म किसे कहते हैं. एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि नंबर्स को जब हम ब्रेक करके लिखते हैं, बढ़ा करके लिखते हैं. तो एक्सपैंडेड फॉर्म किया. एक्सपैंडेड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्लेस, एक्सपैंडेड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू जिसे हम नंबर सेंटेंस कहते हैं. देन वी हैव डन फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ये सारी चीज़ें हमने किया. ठीक है, वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स. सो आई होप जो भी अभी तक पढ़ा है इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वी हैव डन एडिशन ऑफ टेंस ऑल्सो, वी हैव डन एडिशन ऑफ टेंस एंड वंस ऑल्सो. ठीक है, उसके बाद फिर हमने 2 डिजिट वाले 2 नंबर्स का एडिशन भी किया, वेयर वी ऐड वंस टू वंस एंड टेंस टू टेंस. ओके, सो yesterday we did the sums and there was one challenge. ठीक है, कल मैंने वो स्टार्ट किया था but I said कि I'll continue with it tomorrow also. So today I'll first complete that challenge and then we will start with the new topic. Okay, so the challenge was CHALLENGE. The challenge was, what was the challenge? Writing. Challenge was write 57 in 2 different DIFFERENT in 2 different ways. ठीक है, 57 को 2 different ways में लिखना है. One example is given. For example, 57 is equal to 40 plus 17. ठीक है, 40 plus 17. Now we have done the addition of 2 digit numbers, that is adding ones to ones and tens to tens. तो यहाँ पे क्या किया है, 57 को ब्रेक किया है. 57 is equal to 40 plus 17. That means 57 है, 57 means 5 tens. ठीक है, तो 5 tens में से 4 tens, if we take out 4 tens, 5 tens में से अगर हमने 4 tens निकाल लिया तो we are left with only 1 10. 1 10 and 7, that is 17. ठीक है, तो अभी since 57 में 5 tens are there, तो हम 57 में से till 5 tens we can take out. या तो हम पूरे 5 tens निकाल लें, और we take out 4 tens, और we take out 3 tens, और we take out 2 tens, और we take out 1 10. तो जैसे हमने 50 plus 17 लिखा, इसको हम we can write it as, here we have taken out 4 tens, तो हम 3 tens भी तो निकाल सकते हैं ना, 30 भी लिख सकते हैं. So if we take out 3 tens, we are left with how much? 5 में से अगर हमने 3 tens निकाल लिए, 3 tens taken away from 5 tens, so we are left with 5 में से 5, 4, 3. We are left with 2 tens. ठीक है, तो 2 tens that is 20, और 7 तो है ही यहाँ पे, 7 is there, so we can write 30 plus 27. This is one way. We can also say 57 is equal to 4 tens निकाला, 3 tens निकाला, we can also take out 2 tens. अगर हम 57 में से 2 tens निकालते हैं, that means out of 5 tens, 57 means this is tens and ones. Okay,
तो 57 मीन्स 5 टेंस एंड 7 वंस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 4 टेंस निकाला, 4 टेंस अगर निकाला दैट इज 40, तो वी आर लेफ्ट विथ 7 minus 0 7 and 5 minus 4 is 1, 17, ओके। सिमिलरली इफ वी टेक अवे 3 टेंस, यहाँ पे अगर हमने 4 की जगह 3 टेंस निकाली है तो 5 minus 3 दैट इज 27, तो 30 plus 27। सिमिलरली वी कैन टेक अवे 57 में से हम 2 टेंस भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 20, तो 2 टेंस अगर निकाल लिया तो 7 minus 0 is 7 and 5 minus 2 is 3, ठीक है ना। तो अगर हमने 20 निकाल लिया, 2 टेंस निकाला, तो वी आर लेफ्ट विथ 3 टेंस दैट इज 30 and plus 7, तो 20 plus 37, okay, this is also one way। 57 is equal to, we can also take away 4 tens, 57 में से हम 4 टेंस भी माइनस कर सकते हैं ना, 4 टेंस दैट मीन्स 40, तो 7 minus 0 7 and 5 minus 4 is 1, ठीक है। अगर हमने 4 टेंस निकाला, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड 57 में से वी कैन टेक अवे 5 टेंस ऑल्सो, अगर हमने 57 में से पूरे 5 टेंस निकाल लिए तो 7 and 5 minus 5 0, ठीक है। तो 57 को हम 50 plus 7 भी लिख सकते हैं, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग 57, ठीक है। द चैलेंज वॉज राइट 57 in 2 different ways. This example is already given. We can write 50 is equal to 30 plus 27. We can write 57 is equal to 20 plus 37, and we can also write 57 is equal to 50 plus 7, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ चैलेंज, चैलेंज मतलब वेयर यू हैव टू यूज योर ब्रेन अ बिट, ठीक है। जैसे चैलेंज जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना चुनौती, किसी ने हमें चैलेंज किया, तो चैलेंज किया है तो हमें वो चैलेंज तो फुलफिल करना ही है, वी हैव टू फुलफिल दैट चैलेंज, ओके। सो दिस इज ओवर, नाउ टर्न टू पेज नंबर 102। इफ इट इज योर ओल्ड बुक देन इट इज पेज नंबर 101, अदरवाइज पेज नंबर इज 102, ठीक है। पेज नंबर इज 102, ओके। चलो लेट अस स्टार्ट। नाउ द टॉपिक इज ऐड एंड डिकोड द मैसेज, ठीक है। ऐड एंड डिकोड द मैसेज। अभी डिकोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोड एंड डिकोड, इसका मतलब क्या है। कोड मीन्स जब कोई किसी को सीक्रेट मैसेज देना होता है, जैसे सो दैट अदर्स डू नॉट नो, किसी को पता नहीं चल पाए कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हमें क्या बताना है। स्पेशली जैसे जब वॉर वगैरह होता है, लड़ाई होती है, तो एक कंट्री की आर्मी जैसे अपने लोगों को कोई मैसेज कन्वे करना है, तो देर आर लॉट ऑफ वेज जिससे कि दूसरे कंट्री की जिसके साथ सपोज लड़ाई अगर हो रही है तो वो बहुत तरीके से वो दे कैन फाइंड आउट, ठीक है। वो इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि वो क्या मैसेज कन्वे किया है। तो बहुत सारे कहते हैं ना डीको मतलब कोड लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज होती है, कोड लैंग्वेज होती है, तो कोड बहुत सारे फॉलो करते हैं सो दैट अदर्स डू नॉट नो कि हम क्या बोल रहे हैं, ओके। सो हियर व्हाट यू हैव टू डू इज ऐड एंड डिकोड द मैसेज। अभी कुछ एडिशंस दिए हुए हैं, सम एडिशंस आर गिवन एंड फॉर ईच सम, हर एक एडिशन का जो भी सम आता है, फॉर ईच सम डिफरेंट अल्फाबेट्स आर देयर, ठीक है। जैसे सपोज फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है 12 plus 13, 12 plus 13 is 25 and for alphabet 25 I is there, ठीक है। 25 के लिए लेटर I है, ठीक है। अभी जिस सीक्वेंस में ये सम्स दिए हुए हैं, तो 25 के लिए जो अल्फ़ाबेट है वो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, जो नीचे मैसेज में जो बॉक्सेस हैं, ठीक है। फिर 37 के लिए जो लेटर अलॉट किया गया है वो हम सेकेंड बॉक्स में लिखेंगे। फिर थर्ड वाले सम के लिए जो लेटर अलॉट किया गया है वो हम थर्ड बॉक्स में लिखेंगे, and so on, and after completing this we will get a message. So let us see what is the message. So the question is add and decode the message.
The question is add and decode. Okay, यहाँ से I hope you can see add and decode the message. ठीक है, अभी lot of sums are there. First is 12 plus 13 तो ऑलरेडी किया हुआ है, बट स्टिल आई विल राइट इट. 12 plus 13. Then next is 25 plus 12. ठीक है, 25 plus 12. Then 10 plus 2. Then next is 14 plus 11. मैं थोड़े से पास लिख रही हूँ सब, सो दैट हमें नीचे पूरा मैसेज लिखने के लिए जगह मिल जाए. ठीक है. देन 33 plus 15. 33 plus 15. देन 15 plus 10. 15 plus 10. Then 72 plus 17. 72 plus 17. Then 64 plus 14. Okay, 64 plus 14. Then 31 plus 14. 31 plus 14. Then 43 plus 13. 43 plus 13. Then 36 plus 12 and 43 plus 23. 43 plus 23. ओके, ठीक है. अच्छा, अभी ये सम्स करने के बाद इसको फिर मैं इरेज कर दूंगी. वी हैव द जो भी जिस डिजिट के लिए जो भी अल्फ़ाबेट है वो लिखे हुए हैं. ठीक है, तो आफ्टर डूइंग द सम्स आई विल इरेज, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, तो इसको फिर इरेज करके देन वी विल राइट द डिकोड द मैसेज. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एडिशन पार्ट. अभी हम पहले एडिशन करते हैं. फर्स्ट 12 plus 13. तो 12 plus 13 है ऑलरेडी डन इन द बुक. ठीक है, ये ऑलरेडी किया हुआ है. एज एडिशन यू ऑल नो दैट वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. एडिशन हम हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, है ना. सो दिस इज वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस. तो वंस प्लेस दैट इज 2 plus 3 is 5 and 1 plus 1 is 2. So 12 plus 13 is 25. Next is 25 plus 12. 25 plus 12 है, तो at ones place we have 5 plus 2. ones place में क्या है, 5 plus 2. तो 5 plus 2 कितना हो गया, 7. At ones place we have 5 plus 2. 5 plus 2 is 7 and 2 plus 1. 2 plus 1 that is 3. ठीक है, so 2 plus 1 is 3. so यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3. so 25 plus 12 is equal to 37. 10 plus 2. 10, this is ones place, this is tens place. So at ones place we have 0 and 2. So 0 plus 2 is 2. 0 plus 2 is 2 and 1. यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, that means it is 0. जैसे मैंने बताया था कि all the digits, all the numbers from 1 to 9, they have only one, they are single digit numbers, that means they have only one place, ones. तो उन सारे numbers में there is 0, 10. तो whether we write 0, 9 और 9, दोनों का मीनिंग सेम है. हम चाहे 0, 9 लिखें या सिर्फ 9 लिखें, both means 9 ones. ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स इट इज 0 हियर. ठीक है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है मतलब 0 है. तो इन दैट केस क्या होता है, द एडिशन रूल ऑफ 0 सेज दैट, द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ 0 सेज दैट व्हेन 0 इज एडेड टू एनी नंबर द नंबर रिमेन्स द सेम. तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये जैसे 1 है एज इट इज 1 रहेगा. तो 10 plus 2 is 12. Now 14 plus 11.
at ones place we have 4 plus 1. 4 plus 1 is 5. And at ones place we have 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. Okay? So 14 plus 11 is equal to 25. Then 33 plus 15. 33 plus 15. So at ones place 3 and 5. 3 plus 5 is 8. 3 plus 5 is 8. And 3 plus 1. 3 plus 1 क्या हुआ? 3 plus 1 is 4. So 33 plus 15. 3 plus 5 that is 8. 3. ये ones place है, tens place है. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 plus 5 is 8. And 3 plus 1 that is 4. ठीक है? 3 plus 1 is 4. So 33 plus 15 is 48. Now 15 plus 10. ठीक है? 15 that is ones place we have 5 and 0. ones place में क्या है? 5 and 0 है. तो 5 plus 0 is 5. And 1 plus 1. 1 plus 1 that is 2. So 15 plus 10 is equal to कितना हो जाएगा? 15 plus 10 is 25. Okay? 15 plus 10 is 25. Then next is 72 plus 17. ठीक है? 72 plus 17. Now ones place we have 2 and 7 and at tens place we have 7 and 1. So 2 plus 7 that is 2 plus 7 that is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 2 plus 7 is 9 and 1 plus 1. 1 plus 1 that is 2. So 72 plus 17 is equal to 29. ठीक है? Then let us do rest of the sums. अभी मैं इसके आंसर्स लिख लूँगी so that we can decode the message. अभी है 64 plus 14. तो at ones place we have 4 plus 4. ones place पे क्या है? 4 plus 4. तो 4 plus 4 is equal to 8. 4, 5, 6, 7, 8. And at tens place we have 6 and 1. ठीक है? tens place पे we have 6 and 1. तो 6 plus 1, 7. 64 plus 14 is equal to 78. Then 31 plus 14. 31 plus 14 at ones place we have 1 and 4. ones place में क्या है? 1 and 4 है. तो 1, 2, 3, 4, 5. 1 plus 4 is 5 and 3 plus 1. 3 plus 1 कितना होगा? 3 plus 1 that is 4. 1 plus 4 is 5 and 3 plus 1 is 4. 45. Then 43 plus 13. At ones place we have 3 and 3. 3, 4, 5, 6. 3 plus 3 is 6. And 4 plus 1. 4 plus 1 that is 5. ठीक है ना? तो 43 plus 13 is equal to 56. Then 36 plus 12. At ones place we have 6 plus 2. क्या है? 6 plus 2. 6 plus 2 that is 8. 6, 7, 8. 6 plus 2 is 8. And at ones place, tens place we have 3 and 1. 3 plus 1 that is 4. ठीक है? तो 36 plus 12 is equal to 48. Okay? And last is 43 plus 23. 43 at ones place we have 3 and 3 that is 6. And at tens place we have 4 and 2 that is 6. 43 plus 23 is equal to 66. Now children you first write the answers. इसके बाद हम आगे का message decode करेंगे. You write the answers first children. Written, everyone has written. First is 12 plus 13 is equal to 25. Then 25 plus 12 is equal to 37. Then 10 plus 2 is equal to 12. Then 14 plus 11 is equal to 25. 33 plus 15 is equal to 48. Then 15 plus 10 is equal to 25. 72 plus 17 is equal to 29. Then 64 plus 14 is equal to 78.
then 31 plus 14 is equal to 45, then 43 plus 13 is equal to 56, then 36 plus 12 is equal to 48, and 43 plus 23 is equal to 66. Now children, let me write the answers first. एक बार मैं पहले answers लिख लूँ. 25, then 37, then 12, then 25, then 48, 25, 29, 78, 45, 56, 48 and 66. Okay. अभी now let us डिकोड द मैसेज. अभी हम लेसन की जो मैसेज है, मैसेज को हम डिकोड करते हैं. फर्स्ट वी विल राइट द अल्फ़ाबेट अलॉटेड टू ईच सम. जैसे हर एक जो सम आया है, हर एक सम के लिए क्या अल्फ़ाबेट अलॉट किया है, पहले इसको लिख लेते हैं. इसको इरेज कर रही हूँ मैं. ठीक है. अभी मैं आंसर्स फिर से लिख लेती हूँ. साइड में आपको दिख नहीं रहा होगा आंसर. ठीक है. तो आई राइट द आंसर्स अगेन हियर. द आंसर्स आर 25, 37. ठीक है. अभी दिख रहा है. यस. देन 12, 25, 48, 25, 29, then 78, then 45, 56, 48 and 66. ठीक है. These are the answers. इसको साइड का erase कर दूँ. Now let us see the alphabet allotted to each answer. The code, that is code. ठीक है. जैसे जो कोड लैंग्वेज जो होती है, जब कोड में बात करते हैं तो या तो जैसे नंबर्स के थ्रू करते हैं, साइंस होते हैं, साइन के थ्रू कोड करते हैं, अल्फ़ाबेट के थ्रू करते हैं. इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स सो दैट अदर्स आर नॉट अवेयर कि हम क्या कोड यूज़ कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ द मैसेज. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कोड द डिजिट्स आर, पहले अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं. DIN R A E T G and S. ठीक है. These are the alphabets and now let us see what is the sum allotted to each alphabet. अभी D के लिए कौन सा सम है? 12, 25, then for N is 37, 45, 48, 56, 66, 78 and 89. ये सारे जो अभी हमको सम्स मिले, जैसे एडिशन करने पे जो हमें सम्स मिले. ठीक है. अभी इसको भी मैं इरेज कर रही हूँ. जो हमको एडिशन करने पे जो सम्स मिले, तो हर एक सम को एक अल्फ़ाबेट अलॉट किया है. ठीक है ना. ईच सम हैज़ बीन अलॉटेड विथ एन अल्फ़ाबेट. जैसे 12 के लिए अल्फ़ाबेट डी अलॉट किया है, 25 के लिए आई, 37 एन, for 45 R, for 48 alphabet A, 56 E, 66 T, 78 G, 89 S. ठीक है. These are the alphabets allotted to each sum. Now let us write the message. देखिए अभी मैसेज क्या है? MESSAGE मैसेज. अभी मैसेज हमें कैसे लिखना है? देखो एक मैंने गड़बड़ कर दिया ना. नाउ आई डू नॉट रिमेंबर द. रुको फिर से अभी मुझे सम लिखना होगा, क्योंकि जिस सीक्वेंस में सम्स हैं, उनका मतलब जो एडिशन सम्स हैं, उनका जो टोटल आ रहा है, तो जो जिस सीक्वेंस में सम्स हैं, वी हैव टू राइट द अल्फ़ाबेट्स इन दैट सीक्वेंस ओनली. नाउ लेट मी राइट द सम्स फर्स्ट. फिर से मैं रुको लिख लूँ. 25, then 37, 12, 25, then 48, then again 25,
89, 78, 45, 56, 48 एंड 66। ठीक है, अभी फर्स्ट सम क्या है? फर्स्ट सम इज 25, जो सबसे पहले टोटल है, दैट टोटल इज 25। सो नाउ लेट अस सी विच अल्फाबेट इज अलॉटेड टू 25। 25 के लिए कौन सा अल्फाबेट है? आई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आई। ठीक है, अभी बॉक्सेस बने हुए हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, then 2 boxes are there, and then 1 2 3 4 5, again 5, 1 2 3 4 and 5. Now first 25, sorry, then second sum was 37. सेकेंड वाला सम क्या था हमारा? 37. Now 37 के लिए which alphabet is allotted for 37? 37 के लिए अल्फाबेट N. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? N. ये वाला हमारा हो गया सम एंड ये हो गया. Now थर्ड सम was 12. 12 के लिए कौन सा अल्फाबेट अलॉटेड है? लेट अस सी. फॉर 12 इट इज D. फॉर 12 D. तो थर्ड में क्या आएगा? D. ओके. फोर्थ सम वॉज 25. तो 25 के लिए फिर से क्या है? 25 के लिए आई है, तो आई. ठीक है. फिफ्थ सम वॉज 48. 48 के लिए अल्फाबेट इज ए. आई होप चिल्ड्रन ये समझ में आ रहा है. सिंस बोर्ड पे मेरी इतनी जगह नहीं है, बुक में आप देख सकते हो कि जिस सीक्वेंस में ये जो सम्स लिखे हैं, ठीक है, जिस सीक्वेंस में ये जो सम्स दिए हुए हैं, इनका जो टोटल है, ठीक है, इनका जो टोटल है, इसी सीक्वेंस में हमें इसी सम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स लेने हैं. जैसे दिस इज द फर्स्ट टोटल, फिर सेकेंड टोटल, थर्ड टोटल, फोर्थ टोटल. तो फर्स्ट टोटल के लिए जो अल्फ़ाबेट है वो हमने यहाँ लिखा. सेकेंड टोटल के लिए जो अल्फ़ाबेट है यहाँ से हमने देखा 37 है, उसके लिए है N, तो हमने यहाँ लिखा. थर्ड टोटल इज 12. इसके साथ साथ मैंने बुक में भी किया. तो थर्ड टोटल इज 12. फॉर 12 अल्फ़ाबेट D इज देयर, तो हमने थर्ड वाले बॉक्स में D लिखा. फोर्थ टोटल इज अगेन 25. तो 25 के लिए क्या है? I है, तो हमने फिर I लिखा. ठीक है. देन फिफ्थ इज 48. फॉर 48 अल्फ़ाबेट A इज देयर, तो हमने यहाँ पे A लिखा. ओके. नाउ सिक्स्थ वन इज, सिक्स टोटल इज 25. ठीक है. सिक्स टोटल इज 25. अगेन फॉर 25 वी हैव I, यहाँ पे फिर I लिखा. ठीक है. देन नेक्स्ट इज 89. नेक्स्ट टोटल क्या है? 89. तो 89, फॉर 89 वी हैव S, तो यहाँ पे हमने S लिखा. देन नेक्स्ट यू कैन सी दैट इट इज 78. नेक्स्ट टोटल इज 78. तो 78 के लिए क्या है? G, सो वी राइट हियर G. देन उसके बाद क्या है? 45. नेक्स्ट टोटल इज 45. सो फॉर 45 द लेटर अलॉटेड इज R. ठीक है. तो यहाँ पे हमने R लिखा. देन नेक्स्ट इज 56. एज यू कैन सी हियर ऑल्सो 56 है, तो 56 के लिए लेटर E इज अलॉटेड. तो G R E. अगेन द सम इज 48. एज यू कैन सी 48. तो 48 के लिए कौन सा लेटर है? A. G R E A. वी आर लेफ्ट विथ लास्ट, दैट इज 66. And 66 के लिए letter T is allotted. Okay. Now our message is complete. So what is the message? India is great. ठीक है. This is the message when you decoded it. अभी now we know that we can write a number. अगर 2 नंबर्स का एडिशन 48 है, उसको हम वेरियस वेज में लिख सकते हैं ना. तो यहाँ भी जैसे आप देखोगे 25 है, तो 12 + 13 भी लिखा 25. 14 + 11 इज ऑल्सो 25. 15 + 10 इज ऑल्सो 25. सिमिलरली जैसे 48 है, 33 + 15 इज 48. 36 + 12 इज 48. तो किसी भी सम को वी कैन राइट इन सो मेनी डिफरेंट वेज. दैट इज योर चैलेंज, है ना, कि एक किसी भी नंबर को सपोज यू हैव टू राइट ए नंबर इन 5 डिफरेंट वेज. तो
बहुत सारे वेज हैं, आप 5 कोई भी लिख सकते हो. सो आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज वी गेट इज इंडिया इज ग्रेट. इंडिया इज आवर कंट्री एंड इंडिया इंडीड इज अ ग्रेट कंट्री. सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. इसको आप अपने से भी कोई मैसेज बना करके यू कैन प्ले इट. ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ एनी मैसेज. कोई एक मैसेज सोच लो, उसके बाद अकॉर्डिंगली उसमें सम्स अलॉट कर दो. एंड सम्स के लिए अभी आप सपोज कोई सम है 21, तो 21 को आप बहुत तरीके से ऐड कर सकते हो. 10 + 11 कर सकते हो, 13 + 8 कर सकते हो. ठीक है, तो इन दिस मैनर यू कैन फॉर्म योर ओन मैसेज. आप अपना कोई भी मैसेज बना करके यू कैन play among yourself. This is a fun activity. Okay children, so I hope you enjoyed doing it. इसको करने में मज़ा आया और समझ में भी आया. कोई डाउट है तो आप मुझे नेक्स्ट डे क्लास में पूछ लेना. Okay children, so that is all for the day. Thank you and have a good day.